Good afternoon, dear learner, and most welcome at Philophobe. Now, like class, quickly, students, keep on joining. Most welcome again at Philophobe. This platform is very useful for all learners which are preparing for teaching exam. So come fast, dear learner. Quickly keep on joining. Before start the class, make me confirm. Audio, video, is everything fine? Very good afternoon, Lakshmi ji. This is a Philophobe platform. Here you get all information about government job, about vacancies. And as you are watching all teachers with their subject and timetable. And you are getting first and second paper preparation at Philophobe. So this platform is very, very useful for all learners. And we students are preparing for UGC NET, CTET, HTET. Those all students can join without any hesitation. And now we have started MCQ series because we have completed all topics in English grammar. And we students didn't watch my all videos classes. They can watch all videos later. All videos at playlist. And today we will do MCQ series. So dear learner, come fast, I'm waiting. Yes, if you are ready, do thumb. If you are ready for test, thumb करें. MCQ series is very important for all learners. Very good afternoon, Lakhini ji. Are you ready for test? And I will explain with meanings. At first, you will try to yourself. Yes. Yes, Lakshmi ji, Lakhini ji, for which paper are you preparing? Make me confirm. Let's start. First question is on the screen. A house of cards. Yesterday, some students, after seeing this question, they left the class because I thought they didn't get. So today I am doing explain with meanings, and today you will do very easily all questions. So don't get left and do your best. You should know the presence of your mind. If you don't know any question, you should try that. You should make habit that you should try yourself. Okay,
A house of cards. Hurry up, write in chat box which option is right, which is correct. At first you will write and then I will make explain. Yes, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो. पहले आप लोगों को खुद प्रयास करना चाहिए. A house of cards means complicated. A house of cards, आप याद रखो कि ये complicated है. It's difficult, या जो प्लान आपने बनाया है वो बहुत कमजोर है, तो उसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? A dishonest livelihood, a lavish lifestyle, gambling, casino, an insecure situation. Which option will be right? Hurry up. A house of cards का मतलब है कि जो सिचुएशन आपके लिए डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन that is not comfortable for you, and which plan you have made that is weak. तो ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा? हरी अप राइट. यस, वेरी गुड आफ्टरनून संगीता. देखो, जो प्लान आपका वीक है, कमजोर है, तो आप वहां पर कैसा फील करोगे? इनसिक्योर. आपने प्लान तो बनाया है बट दैट इज वीक, तो हाउ यू विल फील देयर? यू विल फील इनसिक्योर. तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? जहां पर आप सिक्योर फील नहीं करोगे, अ हाउस ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स का घर है, वहां पर आप सिक्योर फील नहीं करोगे, तो ऑप्शन में से सही ऑप्शन फाइंड करें. यस, वेरी गुड. एक दूसरे के देखा देखिए ऑप्शन ना दे. देखो, अपना माइंड लगाना सीखें. आता है तो भी और नहीं आता है तो भी. यस वरुण जी, बिल्कुल सेकंड पेपर के लिए भी यूजफुल है. ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर. देखो, आप लोगों को बिल्कुल एक्सप्लेन किया गया है मीनिंग के साथ. कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है आपकी और वीक प्लान आपने बनाया है. जो हाउस है आपने वो कार्ड्स का बनाया है. कार्ड्स का हाउस कितने दिन टिकेगा? कुड यू फील देयर कंफर्टेबल, सिक्योर? नो. तो ऐसे आप निमोनिक से भी लर्न कर सकते हो. अ हाउस ऑफ कार्ड्स अब दोबारा कभी रॉन्ग नहीं होना चाहिए. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. सी द लाइट ऑफ डे. अच्छे स्टूडेंट्स की पहचान होती है कि वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को देख के भागते नहीं हैं और ट्राई करते हैं. ट्राई करना ही चाहिए. यस, सी द लाइट ऑफ डे. अब देखो, सी क्या? लाइट ऑफ डे. लाइट, दिन की लाइट है, आप दिख गए हो, ठीक है. मीन्स कम्स टू एग्जिस्टेंस, दिखाई देना. दिखाई देना मीन्स लोगों को पहचान में आना, लोगों के द्वारा जाने जाना. तो क्वेश्चन नंबर 2 का जल्दी से आंसर दे. क्विकली, आई एम वेटिंग. वेरी गुड आफ्टरनून रंजीता. यस, वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर दिया है रंजीता ने. बिकम पब्लिकली नोन. देखो, जैसे कि मीनिंग में मैंने बता दिया है. मीन्स कम्स टू एग्जिस्टेंस, मेड नोन टू द पब्लिक, मतलब कि दिखाई देना. बिल्कुल इजी वर्ड्स हैं इंग्लिश के, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है कि समझ ना आए. सी द लाइट ऑफ डे,
comes to existence या made known to the public, लोगों के द्वारा जाने जाना, दिखाई देना. So option 3 will be right answer. जो सबसे पहले रंजीता ने दिया है, वेरी नाइस. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. कम टू ब्लोज, कम टू ब्लोज. अब देखो, ब्लोज से आप निमोनिक बना लो कि बिल्कुल बॉयल होना, उबल जाना. वेरी गुड आफ्टरनून समर गेमिंग. यस, देखो निमोनिक्स बना के लर्न करोगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे और कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है. मोस्टली इंग्लिश तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. जो स्टूडेंट्स देख के सोचते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है और क्वेश्चन देखा नहीं कि भागने की कोशिश करते हैं, बीच में क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं. कम टू ब्लोज, ब्लोज मतलब कि बॉयल से याद रख लो आप. ब्लोज बॉयल हो गया. बॉयल कब होते हो? गुस्सा आ जाता है तब. फिर क्या होता है गुस्सा आने पर? फाइटिंग होती है. कम टू ब्लोज मीन्स टू हैव फिजिकल फाइट. फिजिकल फाइट या सीरियस आर्ग्यूमेंट. जरूरी नहीं है कि आप हिंदी में ही लर्न करो, बिल्कुल इजी वर्ड्स हैं. सीरियस आर्ग्यूमेंट और फिजिकल फाइट, आपस में लड़ाई होना या फिर कोई मामला है जो बहुत सीरियस है, गंभीर है. तो आपका कम टू ब्लोज से कौन सा आंसर सही होगा? बिल्कुल सही आंसर देते जाइएगा. हिंदी में भी मैंने समझा दिया है. आपस में आप लोगों की लड़ाई होना या फिर कोई गंभीर मामला होना, कम टू ब्लोज, बॉयल हो जाते हो. तो क्या होगा बॉयल होने पर? आपस में लड़ाई होगी. तो कौन सा ऑप्शन सही है? स्टार्ट फाइटिंग आफ्टर अ डिसएग्रीमेंट. बिल्कुल, जब कोई आपसे एग्री नहीं होता है तो फिर क्या शुरू हो जाती है? फाइटिंग. मेक मी कंफर्म, साउंड आ रही है? ऑडियो वीडियो इज एवरीथिंग फाइन? ऑडियो वीडियो इज एवरीथिंग फाइन? मेक मी कंफर्म. ओके, थैंक यू एवरीवन. ठीक है. कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि वीडियो क्लियर नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से बीच में कंफर्म कर रही हूँ. यस, ओके. ओके.
ओके, थैंक यू एवरीवन। बीच में किसी स्टूडेंट्स का कॉल आया था कि मैम वीडियो दिखाई नहीं दे रही, तो इसलिए मैंने आप लोगों से बीच में पूछा है। ओके, थैंक यू संगीता। चलो, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द रॉक्स, ऑन द रॉक्स मीन्स फेल हो जाना, बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना। यस, ऑन द रॉक्स, ये समझ लो कि पत्थरों में है। ऑन द रॉक्स, जब कोई आप पर पत्थर मारेगा, पत्थरों में आप होगे तो क्या हो जाएगा? डैमेज होगा, नुकसान होगा, बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसे आप निमोनिक से लर्न करें। ऑन द रॉक्स, ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट आंसर। यस, लाइकली टू फेल, फेल हो जाना। ऑन द रॉक्स, पत्थरों में इंसान कब आता है? जब वो सक्सेस नहीं होता तभी पत्थरों में जाता है। तो ऐसे आप निमोनिक से लर्न करें, लाइकली टू फेल। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द हॉर्स माउथ, फ्रॉम द हॉर्स माउथ मतलब कि हॉर्स, यहाँ पर ये समझ लो कि आप डायरेक्ट किसी जो जहां पर मान लो आप कहीं काम कर रहे हो और डायरेक्ट उस अथॉरिटी पर्सन से आप बात करते हो। क्यों? क्योंकि दूसरों पर आपको कोई विश्वास नहीं है, आप चाहते हो कि हम डायरेक्ट वहीं से कोई सोर्स लें। फ्रॉम द हॉर्स माउथ, हॉर्स माउथ, हॉर्स समझ लो जो आपका मेन हेड पर्सन है, उसी के थ्रू जो बातें होती हैं आप उस पर विश्वास करते हो, तो वहीं से आप सोर्स इकट्ठा करते हो। तो दैट इज फ्रॉम द हॉर्स माउथ। हॉर्स माउथ मीन्स डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। जो कोई चीज स्टार्ट करता है डायरेक्ट उसी से कांटेक्ट करना। जो हेड पर्सन होता है आपका, हॉर्स माउथ से याद रखना कि वो निमोनिक बना लो कि वो आपका, यस आप समझ गए हो। ओके, वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं सभी। चलो चेक करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही आंसर दिया है सबने, वेरी गुड। फ्रॉम एन अथॉरिटेटिव, वेरी गुड। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कट कॉर्नर्स, टू कट कॉर्नर्स ये तो हम नॉर्मल भी आम बातचीत में भी यूज करते हैं। टू कट कॉर्नर्स, अगर आप लोगों को बोल दिया जाए कि रेस लगा लो या कोई बड़ा काम करने के लिए बोल दिया जाए तो आप क्या करते हो? किस कोशिश में रहते हो? टू कट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स को कट करने की कोशिश में रहते हैं, शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, है ना? अगर आप लोगों को कोई बता दे कि एग्जाम पास करने के लिए भी कोई शॉर्टकट है तो आप तुरंत अपना लेंगे। तो क्या कर लोगे आप? कट कॉर्नर्स कर लेंगे। यू विल कट कॉर्नर्स। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, वेरी गुड। टू कट कॉर्नर्स, लेट्स सी आंसर। ऑप्शन फर्स्ट, वेरी गुड आफ्टरनून निरुपम ओझा। यस, वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अच्छा, एक बार सभी बता दें क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, क्लास कैसी लग रही है। क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि मैम ने मेहनत की है और मैम मेहनत कर रही है तो आप जरूर क्लास को लाइक करें। और लगता है कहीं पर डाउट है कि नहीं मैम अच्छा नहीं करवा रही, तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हो कि मैम यहाँ पर कुछ कमियां हैं या कुछ प्रॉब्लम आपको लग रही है। ठीक है,
हाँ, टू कट कॉर्नर्स। देखो, हम एग्जाम पास करने के लिए कॉर्नर कट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर तो हमें लंबा रास्ता चूज करना होगा। हमें लेवल से ज्यादा करना होगा, तब जाके एग्जाम क्लियर होता है। जिस भी लेवल का आप एग्जाम कर रहे हो, उससे एक लेवल अबव लेके चलो। वरुण जी, इसके हमारे ईडियम्स के बाद हम पैसेज शुरू करेंगे। देखो, ये ईडियम और फ्रेजेज हैं, आपके हर एक एग्जाम में आते हैं। ये नहीं है कि ये किसी भी एग्जाम में नहीं आते, ये सभी एग्जाम्स में आते हैं। इवन स्टूडेंट्स इनको छोड़ भी देते हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता। तो अगर आप लोग कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ साल्ट। देखो, मैं मीनिंग के साथ आप लोगों को समझाऊंगी। टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ साल्ट। अ पिंच ऑफ साल्ट से ये समझ लो कि आप किसी को डाउट से देख रहे हो। अ पिंच ऑफ साल्ट, सारी चीजें मान लो मीठी मीठी हैं और आपने उसमें क्या किया, एक छोटी सी चुटकी नमक की ले ली, तो क्या हो गया, उसमें वो थोड़ा नमकीन हो गया। तो ऐसे ही आप किसी पर कंप्लीट बिलीव नहीं करते हो, थोड़ा सा आप लोगों को डाउट रहता है, तो दैट इज टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ साल्ट। दैट इज नॉट प्योर, नॉट इज कंप्लीट ट्रू। ठीक है, जहां पर आपको थोड़ा सा डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहती है, तो आपका ऑप्शन सही रहेगा। बिल्कुल सही आंसर दिया है सभी ने। वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स। बिलीव समथिंग विद अ डाउट। बिलीव तो आप करते हो, लेकिन किसके साथ, अ पिंच ऑफ साल्ट के साथ, थोड़ी सी कंफ्यूजन के साथ, थोड़ी से डाउट के साथ। वेरी गुड। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मुझे पता है कि देखो, बुक्स में हम पढ़ते हैं तो बोर भी हो जाते हैं और अच्छे भी नहीं लगते। तो अभी मैं आप लोगों को निमोनिक्स के साथ भी समझा रही हूँ, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होगी। पता नहीं क्यों बाकी स्टूडेंट्स के पास वीडियो ओपन नहीं हो रही, जिसको मैंने शेयर की थी। आई डोंट नो व्हाई। चलो दोबारा शेयर करती हूँ, आप लोग भी शेयर करें भाई। शेयरिंग इज केयरिंग। देखो, शेयरिंग अच्छे स्टूडेंट्स की पहचान होती है। यस, टू फील लाइक अ फिश। एक फिश की तरह फील करना। कब, जब फिश पानी से बाहर होती है तो कैसा फील करती है, जब मछली आपकी पानी के बाहर होगी तो कैसा फील करेगी, रेस्टलेस। वो उसके लिए डिफिकल्ट सिचुएशन होगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा। ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। देखो, पानी के बाहर फिश कैसा फील करती है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपका। बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी गुड सीमा, वरुण, लेयाश्री, वेरी गुड एवरीवन, लखनी, बिल्कुल सही आंसर दिया है सबने। ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर। वेरी गुड कुमार लोकेश। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। टू बर्न अ होल इन द पॉकेट।
ये कल भी मैंने निमोनिक के साथ बताया था। देखो, टू बर्न अ होल इन द पॉकेट, पॉकेट में जलने से आपके होल हो गया है, आपकी पॉकेट में क्या हो गया, होल हो गया। और होल हो गया तो आपके पैसे पॉकेट में पड़े रहेंगे क्या? एक बार मुझे बताएं, अगर आपकी पॉकेट में होल हो जाए तो आपके पैसे कहाँ जाएंगे? पॉकेट में रहेंगे या बाहर निकल जाएंगे? मीन्स समवन इज एगर टू स्पेंड मनी, मतलब कि आपके पैसे जेब में नहीं रहेंगे, जल्दी क्विकली फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, मनी दैट इज स्पेंट क्विकली। आप यही सोचते हो, पॉकेट में पैसे डाल देते हो और खर्च करते रहते हो, तब खर्च करते हैं तो पता नहीं चलता, और खर्च हो जाते हो तो सोचते हो पता नहीं कहाँ गिर गए। अगर आप बाजार में जाओगे तो बाजार में भी ऐसा ही सोचोगे कि स्पेंड नहीं हुए, कहीं गिर गए, है ना? तो क्या हो गया? टू बर्न अ होल इन द पॉकेट, आपकी पॉकेट में होल हो गया। क्वेश्चन नहीं दिख रहा? वाई? सभी को क्वेश्चन नहीं दिख रहा क्या? क्वेश्चन का तो वही साइज है, टू बर्न अ होल इन द पॉकेट। सभी को क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा क्या भाई? सब कुछ ओके है? आपकी तरफ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी या तो? हाँ देखो, बिल्कुल दिख रहा है, और मेरे पास तो 100 स्पीड का वाईफाई है, कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम है नहीं। ओके, थैंक यू सीमा। चलो, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सुखबीर। टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू प्ले फास्ट एंड लूज मतलब कि आपको कोई एक्टिविटी दे दी है। ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके है तो सब कुछ ओके। टू प्ले फास्ट एंड लूज, आपको कोई काम दे दिया, आप उसको बिल्कुल भी शांति से नहीं कर रहे हो, फास्ट कर रहे हो, बिल्कुल भाग भाग के, और उसमें कुछ काम कर रहे हो, कुछ छोड़ रहे हो, तो ऐसे निमोनिक से आप याद रख सकते हो। टू प्ले फास्ट एंड लूज मतलब कि थोड़ा जो भी काम आप करोगे वो इररिस्पॉन्सिबल से होगा, इमोरल भी आप यूज कर सकते हो, डज नॉट टेक थिंग्स सीरियसली, आप वो काम सीरियसली नहीं कर रहे हो। तो इससे रिलेटेड ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा? टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू बी प्लेफुल मतलब कि आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे हो, आप काम को सीरियसली नहीं ले रहे हो, प्ले प्ले में काम कर रहे हो, तो आपका ऑप्शन सही रहेगा। देखो एक बार समझ लो, टू बी प्लेफुल का मतलब होता है काम को सीरियसली नहीं लेना। देखो, से वन थिंग ये भी नहीं है, से वन थिंग कुछ कहना, टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू बी एफिशिएंट, नन ऑफ द अबव। देखो बिल्कुल 3 ऑप्शन में से आपको चूज करने हैं। हाँ बिल्कुल, समर का सही आंसर आया है, ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट, टू बी प्लेफुल, नोट टेक थिंग्स सीरियसली, थिंग्स को सीरियसली न लेना मतलब कि प्ले में, हास्यवाद में उसको टाल देना। हाँ वेरी गुड लखनी, कुमार लोकेश का भी बिल्कुल सही आंसर है। टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू बी प्लेफुल, सीरियसली किसी काम को नहीं लेना। पिन मनी, आज से एक ये वर्ड तो लर्न करना शुरू कर दो। पिन मनी, वो मनी जो एक व्यक्ति के द्वारा अपनी वाइफ को दी जाती है या जो भी उसके ऊपर डिपेंड है उनको दी जाती है। तो आज से जो पिन मनी लेते हैं वो कहना सीखो कि आई नीड पिन मनी,
और जिसको देना है वो भी करें पिन मनी। पिन मनी मीन्स मनी गिवन बाय अ मैन टू हिज वाइफ। वो पैसा जो अपनी वाइफ को खर्च करने के लिए देते हैं, पॉकेट मनी के नाम से आप समझ सकते हो। वो पैसा जो एक औरत को दिया जाता है या जो उनके ऊपर डिपेंड है उनको दिया जाता है। देखो बिल्कुल लिखा हुआ है आपके सामने, पिन मनी मीन्स मनी गिवन बाय अ मैन। एक आदमी के द्वारा दी जाने वाली मनी यानी वो पैसा जो अपने घर में उसकी वाइफ को देते हैं या फिर जो दूसरे लोग उसके ऊपर डिपेंड है, जो पर्सनली उससे रिलेटेड है, उनको देते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ अभी सही ऑप्शन आने लगे हैं। अलाउंस मेड टू अ लेडी फॉर हर एक्सपेंसेस। लेडीज को उसके खर्चे के लिए पैसे देते हैं जो, दैट इज पिन मनी। ये कल मैंने समझाया था। लेट्स सी, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। Yes. Let's see next question. To keep the wolf away from the door. To keep the wolf away from the door. ये समझ लो, आपके गेट पर बहुत बड़ा वुल्फ है जो खाने वाला है, तो आप उसको अपने सामान से दूर रखोगे, आप अपने थिंग्स को उससे बचा के रखोगे। इसका मतलब कि आप काम करोगे। एलिमनी पैसा होता है जो खर्च करने के लिए पॉकेट मनी के नाम से आप याद रख सकते हो। जैसे बच्चों को हम फिक्स कुछ रुपीस दे देते हैं कि महीने के उसके बांट दिए कि बच्चे को मंथली हम इतनी पॉकेट मनी देंगे, तो ऐसे ही एक व्यक्ति अपनी वाइफ को देता है उसकी पॉकेट मनी, दैट इज पिन मनी। टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, कुछ कमाई करना, अपने घर से गरीबी को दूर भगाना। अगर आप वुल्फ को दूर रखोगे तो आपके पास आपकी चीजें जो आपको जरूरत है वो आपके पास रहेंगी, यानी कि गरीबी आपके पास नहीं आएगी। अगर काम करोगे तो गरीबी बिल्कुल नहीं आएगी, और काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, गरीबी आएगी। तो इसका मतलब है आपको वुल्फ को हटाना होगा। ये निमोनिक है। जब तक आप काम नहीं करोगे तो पैसे अर्न नहीं कर सकते। मतलब कि जितनी आपकी जरूरत है आप वो पूरा कर लेते हो। दैट इज टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। टू कीप अवे फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी। यस, बिल्कुल जो बिल्कुल ही गरीबी होती है आप उससे दूर रहोगे क्योंकि आप काम कर रहे हो। एनफ मनी यू आर गेटिंग। यस, वेरी गुड। तो अभी देखो वुल्फ को भगा दिया है काम करके, और आपके घर में पैसे की कमी या खाने पीने से रिलेटेड जो चीजें उनकी कमी नहीं रहेगी। वेरी गुड। लेट्स सी, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। अच्छा, एक बार बताते जाए, जो मैं निमोनिक्स आप लोगों को लर्न करने के लिए बता रही हूँ, इज इट ओके?
निमोनिक से आप लोगों को लर्न हो रहे होंगे। चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। गेट डाउन टू ब्रास टैक। Get down to brass tacks means start discussion about facts। अब देखो मैंने बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हैं जो समझ में आ जाए आपको। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स मतलब कि आप डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हो। तो कौन सा आंसर आपका सही रहेगा, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? यस, बिल्कुल राइट। सभी बच्चों ने मोस्टली राइट आंसर दिया है। वेरी गुड। इसका मतलब जो मैंने मीनिंग लिखा हुआ है उससे समझ में आ जाता है आप लोगों को। और ऐसे ही आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा। तो अगर कोई स्टूडेंट्स राइट नहीं कर पा रहा तो कोई बात नहीं, आप लोगों को एज इट इज पीडीएफ मिल रहे हैं। Let's see next question. To get into a scrap. To get into a scrap means to get in difficult situation. Scrap में आ जाना, scrap में difficult situation। Scrap book याद रख लो इधर से। Scrap book में आप क्या करते हो? जब आप लोगों को स्क्रैप बुक तैयार करनी हो तो बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है, तो आप डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाते हो। तो ऐसे याद रख लो, टू गेट इनटू अ स्क्रैप। स्क्रैप में आ गए मतलब कि जो यूजफुल चीजें हैं उसको भी हम उखाड़ के क्या करेंगे, स्क्रैप बुक में पेस्ट कर देते हैं। तो क्या हो गया, डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई। टू गेट इनटू अ स्क्रैप मीन्स टू गेट इन डिफिकल्ट सिचुएशन। हाँ बिल्कुल, टू फाइंड वन सेल्फ इन एन awkward predicament। वेरी गुड। बिल्कुल राइट आंसर दिया है। वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं और बिल्कुल पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। और जो भी आप लोगों ने अपना टारगेट रखा है, विश करती हूँ कि आप लोग वो अपना टारगेट अचीव करो। रेड लेटर डे, देखो जिस दिन आप अपना टारगेट अचीव करोगे वो डे आपका रेड लेटर डे होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? दैट विल बी रेड लेटर डे फॉर यू। For which day you will get clear your exam? Okay, welcome Seema. Red letter day is an important day। रेड लेटर डे दैट विल बी इम्पोर्टेंट डे होगा आप लोगों के लिए, है ना। रेड लेटर डे मीन्स स्पेशल डे। आपका वो हैप्पी डे भी हो सकता है, स्पेशल डे भी हो सकता है, तो उसको आप क्या बोलोगे, इम्पोर्टेंट डे। यस, ऑप्शन
फर्स्ट विल बी राइट आंसर, वेरी गुड। टू मेक द ग्रेड, ये बहुत इजी था इसलिए मैंने इसका मीनिंग लिखना ज्यादा जरूरी नहीं समझा। टू मेक द ग्रेड, आप अपनी ग्रेड बनाते हो। ग्रेड बनाते हो तो क्या होता है, ग्रेड कब बनती है आप लोगों की? जब आप लोग सक्सेस होंगे, जब आप अच्छा काम करोगे तभी तो ग्रेड बनती है। तो आप इसमें से ऑप्शन फाइंड करें कि आपने अच्छी ग्रेड बनाई है। टू मेक द ग्रेड, ग्रेड बना लिया है आपने, स्कोर कार्ड बना लिया है। तो स्कोर कार्ड आप लोगों को कब मिलता है? आफ्टर सक्सेस। वेरी गुड, so answer will be option 2, very good। let's see next question। अभी देखो हमने पिंच ऑफ साल्ट किया था, कीर somebody's pitch। किसी को हम पिच करते हैं तो क्या होता है उससे? किसी को पिच करते हो तो क्या होगा, वो उदास होगा। कीर somebody's pitch। चलो कोई बात नहीं, ओके, इट्स ओके लखिनी। क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन विल बी फर्स्ट। देखो मैंने बोला कोई किसी को पिच करेगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, अपसेट हो जाओगे। सो आंसर फर्स्ट विल बी राइट। ओके, टू बी अप एंड डूइंग, अप एंड डूइंग, आप ऊपर नीचे हो रहे हो, कुछ काम कर रहे हो तो क्या हो, आप एक्टिव हो। क्या हो, टू बी अप एंड डूइंग, आप अप एंड डूइंग है, काम करने वाले व्यक्ति हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिवली एंगेज्ड। क्या बोलेंगे उसको हम, टू बी अप एंड डूइंग, कि आप काम करने वाले हो, एक्टिव पर्सन हो। यस, क्वेश्चन नंबर 18, वेरी गुड, ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर, वेरी गुड। उम्मीद करती हूँ आज के सभी इडियम्स आप लोगों को अच्छी तरह से लर्न हो गए होंगे, लर्न करने की जरूरत भी नहीं है। टू प्ले द गैलरी, टू प्ले द गैलरी, गैलरी हम लोगों की कब बनती है, आपकी फोटोज की गैलरी बनती है, आप लोग गैलरीज बनाते हो, तो उस निमोनिक से आप लर्न रखें। टू प्ले टू द गैलरी, to behave in a way intending to make people admire or support you। आप गैलरी बनाते हो किस लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए। जैसे पॉलिटिशियन बनाते हैं,
to get appreciation from least intelligent people. आप किसी को प्रभावित करने की कोशिश में हैं. To play to the gallery. टू प्ले टू द गैलरी. गैलरी में आप फोटो लगाते हो, मैंने समझाया. जैसे फोटो किस लिए लगाते हो? किसी को प्रभावित करने के लिए. एप्रिसिएशन. ट्राइंग टू गेट, आप कोशिश कर रहे हो किसी को एप्रिसिएट करने की. ठीक है, लेट्स सी. टू ब्रेक द आइस, इसमें ऑप्शन लगा हुआ आ गया. टू ब्रेक द आइस. क्वेश्चन नंबर 20. टू ब्रेक द आइस. जल्दी आंसर दें. यस, वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर. टू ब्रेक द आइस. देखो, आइस को तोड़ा तो क्या हुई? साउंड हुई. साउंड हुई मतलब कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई. टू ब्रेक द आइस. टू ब्रेक द आइस. टू स्टार्ट कन्वर्सेशन. यस, टू ब्रेक द आइस, टू स्टार्ट कन्वर्सेशन. आज हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं. अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो एक बार फीडबैक दें. क्लास कैसी लगी? अच्छा, एक बार मुझे ये बताइए, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? यस, एक बार मुझे बताएं, जो क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों के सामने लेके आई हूं, ये दिखाई दे रहा है? ये पीडीएफ आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ओके, नहीं दिखाई दे रहा. चलो ठीक है, अच्छा किया फिर मैंने इस सब की पीपीटी बना ली. ओके, थैंक यू एवरीवन. हमारे पास देखो बहुत सारे इडियम्स हैं और ये सभी इडियम्स वो हैं जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं. तो ठीक है, कल फिर मैं इनकी पीपीटी बनाती हूँ अगर ऐसे आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा. ओके, ठीक है. देखो, पीपीटी बनाने में बहुत टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है. तो प्लीज क्लास को लाइक किया करो, शेयर किया करो. ऐसे ही इजीली पीपीटी नहीं बनती और कोई क्लास तैयार नहीं होती है. तो बहुत मेहनत भी लगती है और टाइम भी लगता है और आप लोगों को अच्छा मटेरियल मिलता है फिर. ठीक है, तो इसके लिए प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल, क्लास को लाइक करें, शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी सभी इंफॉर्मेशन मिले. थैंक यू एवरीवन for joining the class and for watching video. Thank you everyone. Have a nice day. Bye bye.